بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈین آرمی کی قید میں آج میری پہلی رات تھی۔ نامعلوم کیا ٹائم ہوا تھا جب میرے جسم پر ٹھوکریں مار کر اٹھایا گیا۔ آنے والے 4 بندے تھے۔ انہوں نے پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھی، میرے ہاتھ کڑوں سے آزاد کر کے پیچھے باندھ دیے، پاؤں سے کڑے اتارے، مجھے بازوؤں سے پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اوپر جا کر بائیں جانب کو چل دیے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد دائیں مڑے اور چاند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے آنکھوں کی پٹی کھولی اور پھر ہاتھ بھی کھول دیے۔ انتہائی تیز روشنی کے لگے ریفلیکٹر سے میری آنکھیں چندیا گئیں۔ کئی بار آنکھیں ملنے اور بار بار جھبکنے کے بعد مجھے ٹیبل کے پیچھے 3-4 شخص بیٹھے ہوئے دھندلے سے نظر آئے۔ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں 2 پنکھے پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ مجھے لانے والے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد درمیان میں بیٹھا آدمی بولا، اب تک تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو اور ہمارے سوالات کا صحیح جواب دو اور اپنے عملی تعاون کا ہمیں یقین دلا دو، اگر تم دلی طور پر ہمارا ساتھ دو گے تو تم نہ صرف بچ جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں آزاد بھی کر دیں گے اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس سیل میں تمہیں رکھا گیا ہے اس سے ہمارے ساتھیوں نے کئی لاشیں نکال کر جلا ڈالی ہیں۔ اس سیل کو غور سے دیکھو گے تو وہاں تمہیں خون کے دھبے بھی دکھائی دیں گے۔ یہ ان کا خون ہے جنہوں نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے زبان نہیں کھولی، لیکن جب ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، مگر اپنی حماقت کی وجہ سے یا تو زندگی ہار گئے یا پھر زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرافت کی زبان سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم دوسری زبان میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کون سی زبان سمجھو گے۔ میں نے یہ لمبی بات تم سے اس لیے کی ہے کہ تم شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم لا علمی میں مارے جاؤ۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے ساتھ بیٹھا ایک نسبتاً جوان شخص بولا، جوان، تمہاری گیم اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے سب بتا دو۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ واقعی میری گیم اب ختم ہو چکی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکا تو وہ میری لا علمی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے کپڑے واپس کر دیں، اور دوسری یہ کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے ساتھ توہین آمیز سلوک اور ذلیل کرنے والا رویہ اختیار نہ کریں، کیونکہ جسم پر لگے زخموں سے انا پر لگے زخم تکلیف زیادہ دیتے ہیں۔ میں آپ کی حراست میں ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرا تعاون کرنے کی آمادگی کے بعد آپ کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ میں خاموش ہوا تو تینوں نے خسر پھسر کی۔ پھر درمیان والے نے گھنٹی بجائی۔ باہر سے ایک شخص اندر آیا۔ درمیان والے شخص نے اسے میرے کپڑے، جوتے اور ساتھ چائے پانی لانے کا کہا۔ سائڈ پر بیٹھے شخص نے کمرے میں لگے عام بلب جلا دیے اور بڑا لیمپ بند کر دیا۔ درمیان والے نے کہا کہ اب پرسکون ہو جاؤ اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری عام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی۔ میں چونکہ اپنی گرفتاری سے لے کر اب تک کے کسی بھی لمحے کو فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے اس دوران پیش آنے والے واقعات کو اور سوال و جواب کو اردو میں اس طرح ڈھالنے کی پوری کوشش کروں گا کہ ان کا تاثر اثر انداز نہ ہو۔ چند لمحوں کے بعد میرے کپڑے اور جوتے مجھے مل گئے، جو میں نے ان سے اجازت لے کر کمرے کے ایک کونے میں جا کر پہن لیے۔ پھر چائے، پانی اور بسکٹ آ گئے، اور پھر انہوں نے میرے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر بھی مجھے لوٹا دیا۔ چائے پانی سے فارغ ہونے کے بعد ان میں سے درمیان میں بیٹھا ہوا شخص، جو یقیناً ان کا سینئر تھا، اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتا دیا۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام مسلم۔ قومیت پاکستانی ہوں۔ کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ مجھے علم نہیں، کیونکہ میں سویلین ہوں اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پاکستان سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ کورئر جس نے آپ کو میرے متعلق مخبری کی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ تربیلا میں PRO تھا۔ اس ادارے میں کیسے آئے؟ سقوط ڈھاکہ کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ کس کے ذریعے رابطہ ہوا؟ ایک کرنل دوست کے ذریعے سے۔ تربیت کہاں پائی؟
लाहौर में। किस रास्ते से भारत में दाखिल हुए? वही रास्ता जिससे कोरियर आता है। मेरे इस जवाब पर सीनियर ने सख्ती से कहा कि रास्ते का नाम बताओ। तो मैंने कहा कि सादकाबादगंज से भारत हनुमान सिंह स्टेशन तक। यहाँ कितने अरसे से हो? तकरीबन 2 साल से। इसकी तस्दीक आप कोरियर से भी कर सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारा कोरियर हमारी हिरासत में है? जहाँ पर मुझे आज गिरफ्तार किया गया है उस जगह और वक़्त का इल्म बस कोरियर को ही था। रिहाइश कहाँ है? अलीगढ़ में। अपने महकमे के अफसरान के नाम बताओ। मुझे किसी के नाम का इल्म नहीं, हत्ता कि अपने महकमे के नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ। जिन लोगों ने मेरी तरबियत की है उनके भी असली नामों से वाकिफ नहीं हूँ। आपकी तरह वहाँ भी सख्ती से अमल किया जाता है। हमारे मुतल्लिक क्या जानते हो? मुझे यकीन है कि आप DIM से हैं। ये अंदाज़ा तुमने कैसे लगाया? मेरी गिरफ्तारी जिस मुनज़्ज़म तरीके से हुई कोई सिविलियन इदारा इतनी फुर्ती नहीं दिखा सकता। तुम्हारा मिशन क्या है? ये सर्वे करना कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के साथ दिली वाबस्तगी रखते हैं या नहीं, और कितने फ़ीसद भारतीय गैर मुस्लिम पाकिस्तान के साथ अमन के ख्वाह हैं। तुम्हारे ग्रुप में कितने बंदे हैं? मैं अकेला हूँ। तुम झूठ कह रहे हो। नहीं, अगर मेरे साथ कुछ और लोग होते तो यकीनन मैं आपको उनके मुतल्लिक बता देता। इस तरह मेरी तफ्तीश का भार कम हो जाता। यहाँ के अखराजात कैसे पूरे करते हो? मेरे अखराजात के रुपए कोरियर के ज़रिए पाकिस्तान से आते हैं। भारत में किन लोगों से तुम्हारे मुरासम हैं और कौन तुम्हें यहाँ माली इमदाद करता है? मेरी यहाँ कोई माली इमदाद नहीं करता और ना किसी के साथ मेरे मुरासम हैं। इस तरह के सवालात मुझसे 2 घंटे से ज़्यादा वक़्त तक पूछे गए और मैं उनके गोल मोल जवाब देता गया। भारतीय अफवाज और असलहा के मुतल्लिक उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जो कुछ मुझे ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था उससे ज़्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं है। जो कुछ भारतीय दिफाई अफवाज के मुतल्लिक मुझे मालूम है वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ आज जो कुछ हुआ इससे मेरी दिमागी हालत सही नहीं। मुझे लंबे अरसे के लिए जेल भेजने या हलाक करने के लिए मेरी दी गई मालूमात ही आपके लिए काफ़ी हैं, लेकिन उन्हें ना तो रिकॉर्ड किया गया और ना ही लिखा जा रहा था। मैंने आपको मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। अगर आप मुनासिब समझें तो बाकी तफ्तीश किसी और टाइम कर ले। मैं तो आपकी हिरासत में हूँ। मेरी साइनाइड की दाढ़ आपने निकाल ली है। मुझे वक़्त दें ताकि मैं जहनी तौर पर नॉर्मल हो सकूँ। अगर दौरान तफ्तीश आपको महसूस हो कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ तो आपके इख्तियार में है कि जैसा चाहें आप मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। और यह हकीकत भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में था और संभलने के लिए कुछ वक़्त चाहता था। अब तक जो मैंने जवाब दिए थे मैं जानता था कि उनकी कोई हैसियत नहीं थी और मुझसे हकीकत उगलवाने के लिए बेतहाशा तशद्दुद करेंगे। मैं चाहता था कि तशद्दुद सहने के लिए मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकूँ। उनके सीनियर्स ने मेरी बात सुनकर कहा कि जो कुछ तुमने कहा है वो सरीहन झूठ और बकवास है। हमने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने समझा कि तुम्हारे सामने वो अहमक बैठे हैं कि जो कुछ तुम बताओगे हम सच मान लेंगे। अपने जहन से इस ख्याल को झटक दो कि तुम हमसे सच्चाई छुपा सकोगे। हम तुम्हें सिर्फ एक मौका और देते हैं और तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करके बेहतर जगह पर भेज रहे हैं। तुम्हें इतना टाइम भी देंगे कि तुम जहनी तौर पर नॉर्मल हो सको। तुम्हारा बयान भी हमारा एक आदमी लिखता जाएगा। आइंदा तफ्तीश के दौरान अगर तुमने गलत बयानी और सच को छुपाने की कोशिश की तो उसके बाद अपनी हालत के तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कहकर उनके सीनियर्स ने घंटी बजाई। 2 आदमी अंदर आ गए। सीनियर ने उन्हें मुझे बाहर ले जाने को कहा। वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगे तो सीनियर ने मना कर दिया और कहा कि रात के अंधेरे में इसे क्या नजर आएगा, इसके हाथ भी खुले रहने दो। थोड़ी देर तक एक बंद गाड़ी उसे आकर ले जाएगी। कमरे में भी उसे खुले रहने देना, लेकिन 2 आदमी उसकी निगरानी के लिए कमरे में मौजूद रहना। यह हदायत देकर वह उठे तो मैंने कहा, सर मैं आपसे दोबारा यकीन दिलानी चाहता हूँ कि आपसे भरपूर ताउन के बाद मुझ पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा और आपके इत्मीनान के बाद मुझे रिहाई मिल जाएगी। सीनियर्स ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिख कर दूं? ये कहकर वो चले गए। उन 2 गार्ड्स ने मुझे पकड़ा और बाहर ले आए। बाहर 2 और गार्ड खड़े थे। ये चारों मुझे उसी जमीन दोज कमरे में ले आए। 2 गार्ड कमरे के अंदर खड़े रहे और 2 बाहर से 2 कुर्सियां ले आए। वो दोनों गार्ड कुर्सियों पर बैठ गए और मुझे फर्श पर बैठने का कहा। मैं फर्श पर लेट गया। जमीन दोज कमरा ऊंची छत की वजह से खासा ठंडा था। मैंने आइंदा पेश आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मेरी आंख लग गई। कहते हैं नींद सूली पर भी आ जाती है।
وہ میں ابھی सूली पर चढ़ा नहीं था मगर करीब जरूर था। सोए हुए मुझे ज्यादा देर ना हुई थी कि मुझे झंझोड़ कर उठा दिया गया। कमरे में पहले 2 गार्ड के अलावा 4 और आदमी थे। नए अफराद में से एक ने मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांधी और मुझे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले आए। उस जमीन दोज कमरे में तो दिन और रात की तमीज का होना ही नामुमकिन था। आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से बाहर आकर भी मुझे वक्त का कुछ अंदाजा ना हो सका। वो मुझे एक तरफ लेकर चले। इस बार मैंने कदम गिनने शुरू कर दिए। 48 कदम गिने थे, जिनमें 2 सीढ़ियां भी शामिल थीं कि वो रुक गए और मुझे जमीन से 1 मीटर ऊपर धकेल कर एक बेंच पर बिठा दिया। मैंने टटोल कर देखा तो वो कोई गाड़ी थी। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और गाड़ी चल पड़ी। मुख्तलिफ जगहों पर दाएं बाएं मुड़ते हुए तकरीबन 1 घंटा बाद गाड़ी एक जगह रुक गई और मुझे गाड़ी से उतारा गया और उतरने से पहले मेरे सर पर एक कपड़ा डाल दिया गया। 30 से ज़्यादा कदम चलने के बाद मुझे एक कदम सीढ़ी चढ़ाकर एक जगह रोका गया। सर का कपड़ा और पट्टी हटा दी गई। ये 12 बाय 10 फीट का कमरा था, जिसमें एक तरफ एक फोल्डिंग बेड और बिस्तर था। हवालात की तरह एक मजबूत सलाखों वाला दरवाज़ा था और ये दरवाज़ा एक छोटे बरामदे में खुलता था। कमरे की चौड़ाई दोनों अतराफ से उसे मिली हुई थी। दाएं जानब की दीवार में एक लोहे का दरवाज़ा था। मैं अभी अच्छी तरह से उन दीवारों और कमरे को देख भी ना सका कि चारों गार्ड सलाखों वाले दरवाजे को लॉक करके दीवार वाले दरवाजे से बाहर चले गए और उसे भी बंद करने और लॉक लगाने की आवाज़ मैंने सुनी। कमरे की छत में एक बल्ब लगा हुआ था, जिसका स्विच कमरे में नहीं था। कमरे में एक तरफ बगैर दरवाजे वाला टॉयलेट कमरे की बाहर जानब बना हुआ था, जिसमें देसी तरस का फ्लश, लोटा और एक टूटी पानी वाली भी थी। टॉयलेट में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। कमरे में एक जानब पानी से भरा हुआ मटका और प्लास्टिक का गिलास था। पलंग के बिलमुकाबिल फर्श में जड़ी लोहे की एक टेबल और दीवार में जड़ी जंजीर में बंधी लोहे की एक कुर्सी थी, जिसे बमुश्किल चंद इंच दाएं बाएं सिरकाया जा सकता था। छत पर लगा बल्ब कमरे के आखिरी कोने में था और एक छत का पंखा बहुत ऊंचा छत से छूता हुआ लगा था, जिसे बेड या टेबल पर चढ़कर भी छुआ ना जा सकता था। उस पंखे का स्विच भी कमरे में नहीं था। 4 दीवारें इतनी बुलंद थी कि बाहर से कोई चीज देखी नहीं जा सकती थी। बरामदे की वजह से जब तक इंतहाई नीचे झुक कर ना देखा जाए, आसमान भी नजर नहीं आता था। यह थी मेरी वीवीआईपी रिहाइशगाह, जो ताउन के लिए रजामंद होने के बायस मुझे दी गई थी। मैं बेड पर नीम दराज हो गया। 2 घंटे बाद मेरे लिए खाना आ गया। खाना लाने वाले के साथ गन बरदार थे, जिन्होंने उसके खाना रखने के दौरान गन्स मेरी तरफ तान कर रखी। वो खाना रख कर चले गए तो देखा कि खाने में 2 चपातियां और दाल थी। ये दोपहर का खाना था। रोशनी से मैंने अंदाजा लगाया कि दिन के 2 या 3 बजे होंगे। गर्मी फुल अरूज पर थी। कमरे में लगा पंखा उस गर्मी में इजाफा ही कर रहा था। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि दौरान तफ्तीश जो कुछ मैंने कहा था उस पर कितना अरसा मैं कायम रह सकूंगा। चाय के कारोबार की जो झूठी स्टोरी थी, जो मुझे तरबियत के बाद पाकिस्तान से सिखाई गई थी, वो तो इस सूरत काम आ सकती थी अगर मैं वैसे ही किसी तफ्तीश में बुलाया जाता। मगर यहाँ तो कोरियर की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया था, इसलिए वो स्टोरी यहाँ किसी सूरत फिट नहीं हो सकती थी। यहाँ पर वाक़यात को तसलसल में रखने के लिए चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा, जिनका मुझे इल्म वापस पाकिस्तान पहुँचकर हुआ था। कोरियर की गद्दारी पर मेरा यकीन महज शक की बिना पर था, क्योंकि जिस जगह मेरी गिरफ्तारी अमल में आई उस जगह वक़्त और दिन का सिर्फ कोरियर को इल्म था। मुकर्ररा वक़्त पर वहाँ मेरे पहुँचने पर DMI के एजेंट या लोग मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे उनको मेरे बारे में पहले ही ब्रीफ कर दिया गया हो। हनुमानगढ़ के रास्ते से आने वाला कोरियर मुझे मिलने के लिए दिन और 2 रात कबल बॉर्डर क्रॉस करता था। यह भी मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉस करने के फौरी बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो और तफ्तीश और तशद्दुद बर्दाश्त ना करते हुए उसने मेरे मुतल्लिक सब कुछ उगल दिया हो। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर मुझे बताया गया कि कोरियर को ऐसी सूरत हाल पेश आने पर यह बताने की हदायत की गई थी कि वो दिल्ली में किसी भी जगह का नाम बता दे जहां पर उसे डाक का पैकेट रखना और दूसरा पैकेट उठाना होता था, और ये कह दे कि पैकेट वसूल करने वाले को उसने कभी नहीं देखा। अगर उसे ऐसी सूरत हाल पेश आई थी तो उसने हमारी हदायत को नज़रअंदाज करके सब कुछ बता दिया था। पाकिस्तान वापसी पर मुझे बताया गया कि कोरियर अपनी रवानगी के 10 रोज़ बाद वापस आया था और सीनियर्स को ये बताया कि डाक पैकेट उसने मुझे दे दिया था, मगर मैंने उसे डाक नहीं दी थी, और कहा कि अगली बार पाकिस्तान से जाने वाली डाक भी उसे दे दी जाए। हालांकि मुझे हुक्म था कि चाहे डाक हो या ना हो,
खाली डाक का पैकेट जो कि वाटर प्रूफ होता था, खाली वही कोरियर के हाथ भेज दिया करूं। वाटर प्रूफ पैकेट इसलिए कि रास्ते में कोरियर को BRB नहर अबूर करनी पड़ती थी। मेरा जोडो कराटे वाला साथी छुप गया जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था। इस तरह डाक भी महफूज रही और वो सही वापस अपने साथियों के पास पहुंच गया और उन्हें मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनाई। दूसरे दिन ट्रांसमीटर पर उनका पाकिस्तान राब्ता हुआ और मेरी गिरफ्तारी और कोरियर की गद्दारी की खबर पाकिस्तान पहुंचा दी गई। कोरियर जब वापस पाकिस्तान पहुंचा तो उसे जाते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसने 3-4 रोज तक अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन फिर हथियार डाल दिए और बताया कि हनुमानगढ़ स्टेशन पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद बर्दाश्त ना करते हुए उसने सब कुछ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि दोबारा वो भारतीय कैद से आज़ाद कैसे हुआ, पाकिस्तान आकर उसने अपनी गिरफ्तारी को क्यों कर छुपाया और आइंदा डाक ले जाने के लिए दिन का तयन क्यों किया। इसका मतलब जाहिर था कि वो गद्दार हो गया था। हमारी कौमी बदकिस्मती ये है कि हमने आज़ादी के बाद भी अपना किबला मगरब वालों को बना रखा है। मैं यहाँ सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि महकमा जासूसी की आला तरबियत के लिए पाकिस्तान और भारत से दोनों ममालिक के अफसरान स्कॉटलैंड भेजे जाते थे और अक्सर ऐसा होता था कि पाकिस्तान और भारत के अफसरान एक ही क्लास में ये तरबियत हासिल कर रहे होते थे। सायनाट भरी दाढ़ इंतहाई तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकने की सूरत में चबाने की तालीम भी दोनों ममालिक ने वहाँ से सीखी थी और दोनों ममालिक इस आखिरी हरबे से वाकिफ थे। यही वजह थी कि गिरफ्तारी के बाद सेल में सबसे पहले मेरी दाढ़ों को चेक किया गया और मेरी वो दाढ़ ही निकाल दी। अब मेरे पास सवाए तशद्दुद सहने के और कुछ ना था। मैंने हालात का तजज़िया किया और इस तजज़िये की रोशनी में कुछ फ़ैसले किए और अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इन फ़ैसलों पर साबित कदम रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। मेरा फ़ैसला ये था कि मैं अपने इब्तदाई बयान पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। कितनी भी पुरतशद्दुद हालत हो जाए, अपने साथियों और लड़कों के नाम नहीं बताऊंगा। भारत में किए गए मिशंस के मुतालिक ना उन्हें कुछ बताऊंगा और ना ही उनसे अपना ताल्लुक ज़ाहिर करूंगा। मैंने इब्तदाई तफ्तीश में अपना सही नाम और अपना इब्तदाई काम इसलिए बता दिया था कि जनेवा कन्वेंशन के तहत बावर्दी दुश्मन को जो बराए नाम तहव्वुज़ात मिलते हैं वो बेवर्दी गिरफ्तार शुदगान पर लागू नहीं होते और ना ही कोई मुल्क अपने बेवर्दी गिरफ्तार जासूसों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें ऑन करता है, बल्कि वो गिरफ्तार शुदगान से अपनी ला ताल्लुकी ज़ाहिर करते हैं। सिर्फ एक मौहूम सी उम्मीद होती है कि अगर नाम पता सही बता दिया जाए तो फिर किसी तीसरे मुल्क के तवस्सुत से दोनों मुल्क ऐसे कैदियों का तबादला करते हैं। ये उम्मीद महज दिल को बहलाने के लिए है, वरना ना तो ऐसे कैदियों की तशहीर ही की जाती है और ना उन्हें जिंदा छोड़ा जाता है। अगर कोई जिंदा बच भी जाए तो वो इस काबिल नहीं रहता कि तबादला किया जा सकता हो। सुपर ताकतों का मुआहदा दूसरा है। 1965 की इंडिया पाक जंग के दौरान कराची में एक हमला आवर जहाज हिट किया गया, मगर उसके पायलट्स बाहिफाजत पैराशूट के जरिए नीचे उतर आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनकी रेडियो पर तशहीर की गई। उसके चंद दिन बाद ही रूस उन्हें बाहिफाजत छुड़ा कर ले गया। 71 की जंग में भी इंतहाई मुस्तनद ज़राए ने तस्दीक की थी कि रूस की भारत को दी हुई मिसाइली बोट्स का अमला रूसी था और उन मिसाइल बोट्स ने ही हमारे बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाया था। सब कुछ जानते हुए भी उस वक़्त की सुपर पावर रूस से हम एहतजाज ना कर सके। मेरे फैसले का लब्बे लुबाब ये था कि मैंने अपनी इब्तदाई तफ्तीश पर ही कायम रहना है और उनको उन्हीं के मुल्क की मालूमात देकर उलझाई रखना है और उनकी तफ्तीश के रुख को मोड़ने की कोशिश करनी है। तफ्तीश कार भी इंसान ही थे और मैं उन्हें नफसियाती दाव पेच में लाने की कोशिश करूँगा। वो दिन यूं ही सोचते गुजर गया।